हेलो गाइस, आई एम Mujasvi, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम एमडी रोहतक। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, दैट इज मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ वायरस कंट्रोल। इट इंक्लूड्स एंटीसेंस आरएनए, siRNA एंड राइबोजाइम। आज के टाइम पे व्हेन इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन एन antiviral that can save the people. And this presentation may give you knowledge about the antivirus that scientists are trying to design, right? So सबसे पहले we should know कि antivirus होता क्या है. Antivirus are the drugs that are specifically target for particularly virus infections. And इसके अंदर antivirus do not directly kill the pathogen or destroy it, but they can inhibit the development of that particular pathogen, right? वायरस जो है वो होस्ट मैकेनिज्म्स को, होस्ट मशीनरी को यूज करता है फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ इटसेल्फ. सो अगर हम इसके आरएनए जिससे ये रेप्लिकेट कर रहा है एंड डिजीज कोज कर रहा है, तो अगर हम उस रेप्लिकेशन को ही स्टॉप कर देते हैं, सो इट विल बी एबल टू एक्ट एज एन एंटीवायरल, राइट? सो आजकल मार्केट में जो अब तक एंटीवायरल ड्रग्स जो अवेलेबल है, दैट आर HIV, हर्पस वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरस, जिसमें से जो मार्केट में फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग डेवलप किया गया था, दैट वाज 1960 हर्पस वायरस के लिए. एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इज अ वे टू डेवलप एंटीवायरल. सबसे पहले आई विल गोना टेल यू कि ये होता क्या है. It is a single stranded RNA molecule that is complementary to the protein coding mRNA. It means वायरस के जिस mRNA को टारगेट हम लोग कर रहे हैं ताकि we can destroy that and we can stop the replication, उस mRNA के complementary एक antisense oligonucleotide we will gonna synthesize artificially and we will gonna inject it in the body so that वो mRNA के साथ जाके बाइंड करे और उसके ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दे, प्रोटीन ना बने, वायरस की रेप्लिकेशन ना हो. हमारी बॉडी में भी ये प्रेजेंट होता है इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड इन शॉर्ट एंड लॉन्ग नॉन कोडिंग RNAs. It gonna regulates the gene expression and artificially synthesize karna for a particular mRNA for that particular virus is the main focus of the antivirals, right? It is very stable without refrigeration and it is highly soluble in water, and it is classified into cis-acting and trans-acting AsRNAs. AsRNA is the short form, या फिर ASO if you are gonna see it in the presentation. ASO or AsRNA is directly says about antisense oligonucleotide RNAs, right? So cis-acting और trans-acting में फर्क क्या है? Cis-acting is synthesized or transcribed by the complement strand of that particular mRNA. कि जिस टारगेट mRNA की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, उसकी जो अपोजिट वाली स्ट्रैंड होगी, बिकॉज वी ऑल नो डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, तो उसकी जो अपोजिट स्ट्रैंड होगी, उस अपोजिट स्ट्रैंड से हम लोग इस mRNA को ट्रांसक्राइब करेंगे, सो दैट अगर हमें इसे mRNA के पास हाइब्रिड करवाना है, so it will be able to directly get attached with that particular mRNA with a strong bond because of the complementarity, right? तो cis-acting is really very useful in it because इस वजह से cis-acting RNA will gonna hybridize with that particular mRNA, the target mRNA, and it will gonna recreate RNA's enzyme to cleave that mRNA, the target mRNA. या फिर it will gonna modify the particular mRNA in a way that it will not be able to translate, right? Trans-acting mRNA जो है, it transcribed at a distal loci, right? There will be a difference, complementarity कम होगी and it will gonna be long as compared to cis-acting, and it will gonna be make less stable complex, less stable hybrid with that particular mRNA, the target mRNA, and therefore cis-acting mRNA जो है, that is useful rather than trans-acting mRNA, trans-acting antisense AsRNAs, right? So this diagram shows that particular function of AsRNAs कि DNA से जिस तरीके से mRNA transcribe होगा, this antisense drug oligonucleotide will gonna attach with that particular mRNA and it will gonna block the translation. In a way, it can recreate RNase H, and it can also be possible कि translation happens in cytoplasm, so this complex will not be able to cross the nucleus.
ASRNA का फंक्शन क्या है? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बाय दिस डायग्राम. First, it can recreate DNMT, DNA methyl transferase, which will gonna methylated the DNA, that gene, and the transcription or translation will not be possible. And इसके अलावा it can gonna recreate HMT, that is histone methyl transferase, and it will methylate the histone proteins, and transcription will not be possible. या इसके अलावा it will gonna interact with the polymerase enzyme of that will gonna make mRNA, and it will gonna collide, और इस वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी. फोर्थ, हो सकता है mRNA के एक वेरिएंट को ही ट्रांसक्राइब कर दे और दूसरे को ये ना करे. एंड फिफ्थ, इट इज पॉसिबल कि जब ये एक हाइब्रिड बनाए तो राइबोसोम मशीनरी, दैट इज ट्रांसलेशन मशीनरी, विल नॉट बी एबल टू रिक्रीट, या फिर इट विल गोना मेक आरएनएज एच टू कम, और इस वजह से एमआरएनए नहीं बन पाएगा या फिर प्रोटीन नहीं बन पाएगा. एंटीवायरल की तरह कैसे काम करेगा? उसके लिए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट आई थी, दैट वाज इन 1977 बाय पीटरसन. And currently there are 3 oligonucleotide drugs that have been approved by Federal Drug Administration, that is FDA, and these drugs are formivirsin, mipomersin, and macugen, and these drugs are formed by this technology, that is antisense technology, जिसमें से formivirsin is the only drug for the that act as an antiviral, and it targets the cytomegalovirus retinitis, CMV, in the patients with AIDS. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अगर ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड ASO है, तो इट विल गोना मेक कॉम्प्लेक्स विद द प्रोटीन एंड रिक्रिएट द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA एंड गोना डिस्ट्रॉय इट. और अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो देयर आर 5 वेज. इट कैन इनहिबिट द 5 प्राइम कैप फॉर्मेशन, और अगर वो नहीं बनेगी तो ट्रांसलेशन मशीनरी नहीं आ पाएगी. इट कैन स्टेरिकली ब्लॉक द प्रोटीन ट्रांसलेशन. इट मीन्स mRNA का जो कोडोन होगा, इनिशिएशन कोडोन होगा, ये उस पे जाके बैठ जाएगा या फिर उसको ब्लॉक कर देगा, और इस वजह से जो भी पॉलीमरेज एंजाइम है जिसे रिक्रिएट होना है उस इनिशिएशन कोडोन पे फॉर द ट्रांसलेशन, वो नहीं हो पाएगा. थर्ड, इनहिबिट और ऑल्टरनेटिंग आरएनए स्प्लाइसिंग. अगर आरएनए स्प्लाइसिंग किसी एमआरएनए की सही नहीं हुई है या फिर हुई ही नहीं है तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, या फिर ये आरएनए एच को एक्टिवेट कर देगा, दैट विल गोना डिग्रेड द एमआरएनए. सेकेंड जो हमारा मॉलिक्यूल है, दैट इज siRNA, दैट इज स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, which works with RNA interference pathway. RNA interference pathway बेसिकली है क्या? इट इज सिमिलर टू एंटीसेंस RNA, कि ये mRNA के साथ टारगेट स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंटेशन करेगा, हाइब्रिड बनाएगा और mRNA को क्लीव कर देगा. So RNA interference will work with that particular thing. So siRNA, small interfering RNA, is a class of double-stranded non-coding RNA molecules that is in 20 to 25 base pair in length, and it interferes with the expression of specific genes with complementary nucleotide sequence. कि अगर इसके जो सीक्वेंस है, इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में जो सीक्वेंस है वैसे ही सीक्वेंस उस mRNA में है, तो इट विल गोना इंटरफेयर विद द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर mRNA और ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेगा. इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि इसके स्ट्रक्चर में 5 प्राइम एंड इज फॉस्फोराइलेटेड एंड 3 प्राइम एंड हैज 2 न्यूक्लियोटाइड, ओवरहैंगिंग न्यूक्लियोटाइड. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम दिस डायग्राम. कोई भी अगर हमारी बॉडी में, इट इज नॉट अबाउट एंटीवायरल ड्रग, बट इन आवर बॉडी कोई भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए है या फिर कोई भी हेयरपिन लूप है जिससे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, तो देयर इज अ डाइसर एंजाइम व्हिच विल गोना क्लीव दैट पर्टिकुलर डबल स्टैंडर्ड RNA, और it will gonna make a 20 to 25 nucleotide big siRNA duplex, जिसमें फॉस्फेट होगा और ओवरहैंगिंग न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, राइट? AGO is a argonaut 2. AGO is argonaut 2 protein that has the endonuclease activity, जिस वजह से siRNA के जो 2 कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो 2 स्ट्रैंड्स है, ये उनको क्लीव कर देगा, और एक स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट करेगी टारगेट mRNA से उसको ये रिक्रिएट करे रखेगा, और दूसरी वाली विल गेट डिग्रेडेड. सो AGO protein will gonna make complex with the siRNA single strand
that complex is called as RISC. RISC means RNA induced silencing complex. और ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो सिंगल स्ट्रैंड है siRNA की, it will gonna see if it will gonna search for the complementary mRNA and get bind with that complementary RNA and will gonna slice it, और इस वजह से जीन साइलेंसिंग हो जाएगी. इट मीन्स siRNA का फंक्शन ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के साथ बाइंड करके उसको क्लीव करा देगा, राइट. और द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेंस एंड दिस इज कि siRNA जो है इट विल नॉट गेट डिग्रेडेड आफ्टर इट क्लीव्स द mRNA, बट एंटीसेंस RNA कैन गेट डिग्रेडेड. And second thing is, it is present in double-stranded form rather than antisense RNA. एंटीवायरल की तरह ये कैसे एक्ट करेगा? आर्टिफिशियली हम लोग साइटोप्लाज्म में इसे इंड्यूस कर सकते हैं. इट इज 19 to 23 बेस पेयर और 2 न्यूक्लियोटाइड, मतलब सेम स्ट्रक्चर हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके इसको रिक्रिएट कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर हम लोग दोनों 3 प्राइम एंड्स पे 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग्स लगाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द डाइसर to choose between those two because it is artificially synthesized. So हम टारगेट जीन्स, ताकि ऑफ टारगेट इफेक्ट ना आ जाए, इस वजह से टारगेट जीन जो mRNA है उसका सीक्वेंस देख के हम उसी के अपोजिट एक mRNA मतलब एक siRNA बनाएंगे जिसमें सिर्फ उसी स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे हम लोग न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग करेंगे जो हमें चाहिए कि वो कॉम्प्लीमेंट करे हमारे mRNA को. बिकॉज जिसके ऊपर 3 प्राइम पे 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग नहीं होगा इट विल गोना क्लीव, राइट. सो आर्टिफिशियली ऐसे ही होता है कि हमने उसको डाला, डाइसर विल गोना क्लीव द स्ट्रैंड, और जिसके ऊपर 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग्स है दैट विल गोना complement with the mRNA and will gonna cleave it. PCR हम लोग यूज करते हैं to confirm the sequence specific cleavage by AGO2, ताकि cleavage is really very important, ताकि ये चल जाए पता कि हम लोग जो ये cleavage हो रही है that is by RNA interference pathway only. वायरस रेप्लिकेशन की inhibition has been reported for several human pathogens that includes HIV and hepatitis B and C virus, influenza virus, etc. राइट. ये ऑलरेडी रिपोर्टेड है बाय siRNA. इवन हम लोग अगर कोरोना वायरस की बात करते हैं जो आजकल चल रहा है, दैट इज द साइंटिस्ट एंड द कंपनीज आर ट्राइंग टू मेक एन एंटीवायरस यूजिंग siRNA ओनली. जितनी भी स्टडीज अब तक अवेलेबल है दैट इज siRNA को. siRNA AsRNA से एडवांटेजियस इसलिए है बिकॉज इट कैन बी टारगेट स्पेसिफिक एंड द डिजाइन फॉर siRNA इज एंड स्क्रीनिंग इज इजी रादर देन AsRNA. लॉन्ग लास्टिंग साइलेंसिंग होगा and reduction of off-target toxicity and increased potency that can be accomplished by designing siRNA as asymmetric dicer. जो मैं 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग की बात कर रही थी वो चीज, मतलब एक टारगेट स्पेसिफिसिटी आ जाएगी. एंड लास्ट इज अनलाइक एंटीसेंस थेरेपी जो कि स्टिशियोमेट्रिकली होती है, siRNA जो है वो दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है आफ्टर द क्लीवेज. These are some of the vehicles for siRNA जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें से कुछ टर्मिनेट कर दिए गए हैं एंड सम आर कंप्लीटेड एंड सम आर ongoing. RNA interference की therapy is useful for particularly respiratory tract. For example, coronavirus जो है वो इफेक्ट कर रहा है respiratory tract को, so उसके लिए RNA interference therapy is very important. Third is ribozymes that cause catalytic. These are catalytic RNAs that function as enzyme and do not require protein for catalysis. And second is most of them are catalyzed RNA cleavage. RNA cleavage catalyze करते हैं, इस वजह से ये एंटी वायरस की तरह काम करते हैं, जिसमें से मेनली साइट स्पेसिफिक क्लीवेज होती है एंड हैमर हेड एंड हेयरपिन वाले जो राइबोजाइम्स है दैट आर मेनली इंपॉर्टेंट. एंटीवायरस की तरह किस तरह काम करते हैं? टारगेट सेल को हम लोग डिलीवर कर सकते हैं एंड सेकेंडली स्टेबिलिटी बहुत पुअर होगी अगर फुली रन होते तो हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं केमिकली सो दैट दे कैन वर्क एज राइबोजाइम्स. एंजियोजाइम इज द फर्स्ट एंटी राइबोजाइम टेस्टेड and these are the clinical trials that has been made for ribozyme. Thank you.